Good evening, students. And today, again, we are going to start pronouns and their correct use. Yesterday, we have done personal pronouns. I hope all the personal pronouns are clear to you, and you have gone through all the notes again and again. Now, we will take the next pronoun, which is after personal noun, which is reflexive pronoun. Okay. Now, what is reflexive pronoun? First, we have to know this, that in reflexive pronouns, subject and object are same. Okay. Then, subject and object, how they are same? Like, we hurt ourselves. So, we stands for hum sab, and ourselves, our also same. Okay. You, yourself. So, here you and yourself. You and yourself. So you see how they are same, subject and object. The next thing is, it emphasizes a noun. What is the use? Why do we use reflexive pronoun? It emphasizes a noun. Okay. Now, if we see this, reflexive pronouns are words ending in self or selves. In singular, it will take self. In plural, it will take selves. Self and selves. Themselves. Himself. Singular. Himself. Okay. That are used when the subject and object of a sentence are same. I believe in myself. Now, I also stands for I, मैं, और myself माने मैं खुद. ठीक है. The 9 English reflexive pronouns are myself, yourself, himself, herself, oneself, itself. ये सब सिंगुलर में है. ठीक है. माई सेल्फ मैंने मैं खुद, योर सेल्फ तुम खुद, हिम सेल्फ वो लड़का उसके लिए आ रहा है, हर सेल्फ लड़की के लिए, वन सेल्फ मैंने स्वयं के लिए, इट सेल्फ मैंने कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए. आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स, ये तीनों प्लूरल में है. अब ये चार्ट में आप देख के और अच्छे से समझ सकते हैं. Reflexive pronouns are type of objects. They are because they come in the place of object. I have told you subject, verb, object. So they come in the place of object. A reflexive pronoun refers back to the subject of the sentence or clause. Many times people they start their sentence with myself and then they tell the name myself so and so. They give the introduction like this. This is the wrong way of giving an introduction. You should always start with I, myself, so and so. Then it is correct. Because myself is a reflexive pronoun and it will never come again alone without a subject. Clear? Now, they are used when an object is the same as the subject. The object reflects the subject. Object ही reflect को subject को reflect करता है. देखिए, subject है you, verb है see और object क्या है you, yourself. You see yourself. तो ऑब्जेक्ट किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट को. बिकॉज द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड. क्लियर? आई होप इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज क्लियर. एंड विद दिस नाउ वी कम टू indefinite pronouns. Now the other pronoun which we are taking is the indefinite pronoun. Indefinite pronoun इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस. सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस बहुत सारे होते हैं. एनीबडी, एनी, जिसमें एनी माने क्या होता है? वन. एनी माने कोई भी एक. ठीक है. ईच एक, इधर, इनफ काफी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब इसमें आते हैं. और प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन 4 ही हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं. फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अदर्स. तो ये 4 प्लूरल होते हैं. तो ये बहुत सिंपल है, इनको याद रखना. फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अदर्स. ओके, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं. MOFF, मॉफ, मैनी, अदर्स, फ्यू, फ्यूअर. और ये 4 ऐसे हैं, 4-5 ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं. और भी हैं, इसमें सम भी आएगा. एनी, मोर, मोस्ट, नन. ये सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकता है और प्लूरल के लिए. अब ये किस सेंस में यूज होता है ये हम प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमको आएगा ये. मोर ज़्यादा, मोस्ट ज़्यादातर, नन कोई भी नहीं, यानी कई में से कोई भी नहीं. तो ये सिंगुलर में भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल में भी यूज हो सकते हैं. क्लियर? तो ये चार्ट को हमको समझना है अच्छे से, और इसको जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको अच्छे समझ में आएगा. आई होप इट इज क्लियर.
नाउ यू सी अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन, अमाउंट और थिंग इन पर्टिकुलर। समझ में आया? इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन, किसी खास पर्सन को नहीं, किसी खास अमाउंट को नहीं, किसी और थिंग इन पर्टिकुलर, यानी किसी खास चीज की तरफ वो इशारा नहीं करता। लाइक एग्जाम्पल एनीथिंग, समथिंग, एनीवन, एवरीवन, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, क्लियर? अ प्रोनाउन, अब आप देखिए द प्लूरल, यही हमने आपको अभी चार्ट में बताया था, वही चीज है। द प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन इंक्लूड 4, देखो 4 वर्ड्स है, मैंने आपको बताया था, बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, ये इसमें 4 ये हैं। ठीक है, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, सेवरल, ये सब। ओके, व्हेन दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट यू मस्ट ट्रीट देम एज प्लूरल एंड यूज द कॉरस्पॉन्डिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसको हमें क्यों समझना है कि ये प्लूरल में है, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी वर्ब भी हमेशा प्लूरल में होगी, बिकॉज सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद द वर्ब या वर्ब एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। अगर हमने इसको प्लूरल माना तो हम यहाँ पे आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे, है ना, वर लगाएंगे, वॉज नहीं लगाएंगे, ये चीज के लिए। तो ये इनको याद कर लीजिए आप। फिर दूसरा, यू मस्ट ट्रीट देम एज प्लूरल एंड यूज हियर द सिंगुलर। अब सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं, वही जो हमने अभी पीछे पढ़े, another, anybody, anyone, anything, each, either, everybody, everyone, everything, neither, nobody, no one, nothing, one, somebody, someone, something। ठीक, और जो दोनों प्लूरल और सिंगुलर दोनों हैं वो हैं एनी, मोस्ट, नन, सम। ओके, क्लियर हो गया? तो ये हमारे हो गए प्लूरल वाले, ये हो गए हमारे सिंगुलर वाले, और ये हो गए हमारे बोथ। तो indefinite pronoun, why should we learn indefinite pronoun? Because it will help us to make frame a correct sentence, the sentence which will have agreement of subject with the verb. If we misjudge the subject, then naturally the verb will also be wrong and our sentence will be grammatically. Okay, now we will do these worksheets. These worksheets are based on indefinite pronouns, like both of his parents is a teacher. Now what is the mistake in this sentence? is नहीं आएगा, both means दो लोग, तो इसके लिए क्या आएगी यहाँ पे वर्ब? आर। क्या होगा? आर। ठीक है, एवरी स्टूडेंट हैव अ बुक, एवरी ईच स्टूडेंट माने हर एक स्टूडेंट, यानी वन हो गया सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज। ओके, फिर मोस्ट द पीपल, अब इस एक्सप्रेशन गलत है, इसमें 2 ही एक्सप्रेशन हो सकते हैं, एक हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल एंड द अदर कैन बी मोस्ट पीपल। ठीक है, मोस्ट पीपल, तो ये द नहीं आएगा, मोस्ट पीपल। इन यू कैन टेक एनी वन एक्सप्रेशन। शी इन्वाइटेड ऑल टू हर पार्टी। नाउ शी इन्वाइटेड ऑल टू हर पार्टी मीन्स शी इन्वाइटेड, सबको उसने इन्वाइट किया, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे ऑल नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? शी इन्वाइटेड एवरीवन या एवरीबडी। ओके, मोस्ट, इसमें सेम वही मिस्टेक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर चाइनीज। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन बताया ना, मोस्ट ऑफ द पीपल, इसी तरह इसमें भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सेम, ऑल ऑफ कंट्रीज इन यूरोप आर डेमोक्रेटिक, तब इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द कंट्रीज या ऑल कंट्रीज। So this expression you have to learn very nicely. Every student were late today. Now see, every student, that means all students. Na? So why every? Why don't we use all? We have to use all. All students were late today. He stole all the money. He stole all of the money. All of the money. ठीक? That was every weeks. Weeks नहीं होगा, week. Every week. Week माने हफ्ता खुद ही होता है. फिर most of the Dutch people या most Dutch people speak, ओके, स्पीक्स नहीं होगा, स्पीक्स क्यों नहीं होगा? ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, मोस्ट है ना, तो यहाँ पर स्पीक होगा। आपको पता है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होती है, और जब वर्ब सिंगुलर होती है तो उसमें एस या ई एस लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। ठीक है, तो ये हमारी मिस्टेक्स है। सो एडिटिंग में यू विल हैव टू फाइंड आउट दीज मिस्टेक्स। नाउ यू सी दीज ऑप्शंस थे, ये तो बहुत ईजी था। द न्यू प्रिंसिपल हैज चेंज डैश द स्कूल, द न्यू प्रिंसिपल हैज चेंज एवरीथिंग इन द स्कूल। डू डैश इंग्लिश पीपल लाइक द क्वीन, डू ऑल ऑफ इंग्लिश पीपल। ठीक है, डू ऑल इंग्लिश पीपल क्या होगा? डू ऑल इंग्लिश पीपल लाइक द क्वीन। इसको आप
fill in the blanks कर सकते हैं. This all are given. Answer sheet is here. You can go through them and you can practice it because it will take lot of time. Then now we come over to our next pronoun, that is relative pronoun. Now what is relative? Relation आप जानते हैं, रिश्तेदार. तो a word, a pronoun which tells relation of one noun, one subject to the other. Like I said, this is the house. This is the house. This is the house that was built. That was built by so and so. Now, that was built. It is showing relation to the house. That was built is a relative pronoun. That is the relative pronoun, and it is showing relation to the noun here. समझ में आ गया? So it has a relation. That can stand alone. Now, that was built by Mr. Ram. Okay. Now this portion of the sentence, it is also known as clause. It is also known as clause. Clause क्या होता है? Which has its own subject and predicate. जिसका अपना subject और अपना predicate होता है, उसको हम बोलते हैं clause. अभी in grammar I will teach you clauses also. Further in grammar we will take up this topic, clause. That time we will take detail of all the relative pronouns. Relative clause, there are noun clause, adjective clause, adverb clause, relative clause. We will take them all. But till now we have to do only with pronouns. Who, whoever, whom, whomever, what, that, which, when, where, whose. These all are the relative pronouns. Who, अब हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें कि कब हम किस pronoun को use करेंगे. Now, refers to noun that going before it. Okay, the noun will always go like I have given you the sentence. Yeah, this is the boy. This is the boy who fell down. So who is coming just after the noun. So it refers to the noun going before. So relative pronoun will always be referred to the noun which is just before. जो noun उसके पहले होता उसी के रेफरेंस में ये हमेशा relative pronoun को हम लगाएंगे. ठीक है. अब as is also a relative pronoun. as भी एक relative pronoun है, जैसे who, when, what, where है, ऐसे as भी एक relative pronoun है. लेकिन ये किसके संग आएगा? some और such के संग. जिन sentences में some आ रहा है या जिस सेंटेंस में सच आ रहा है उनके संग हम as का यूज़ करते हैं as relative pronoun. एग्जाम्पल दिया है, दिस इज नॉट द सेम बुक एज दैट. सो दिस इज नॉट द सेम बुक एज दैट, वो सेम बुक नहीं है जैसी वो. अब ना हु का यूज़ कब करते हैं हम? फॉर पर्सन, इंसानों के लिए. हुम उसी इंसानों के लिए जब वो ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं. हुज जब वो पोजेसिव केस में आ रहे हैं. केस हम पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. वॉट वॉट किस में हम यूज़ करते हैं? इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग थिंग्स में. दैट फॉर पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग. दैट का यूज़ कब करते हैं? पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स के लिए. इन द ऑब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव केस, दोनों में, ऑब्जेक्टिव केस में भी और नॉमिनेटिव केस में भी. जैसे एग्जांपल के लिए वॉट कब आएगा हमारा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में? वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड. तो आप देख रहे हैं वॉट किसकी तरह आ रहा है? सब्जेक्ट की तरह आ रहा है. तो इसलिए ये प्रोनाउन है ये. ठीक. शी लॉस्ट हर रिंग दैट हर हस्बैंड गिव. तो ये रिंग नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए दैट आ रहा है. दैट हर हस्बैंड गिव हर. अब नन इज यूज्ड इन सिंगुलर. नन को हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और ईच को ईच अदर फॉर टू और टू एंड वन अनदर फॉर मोर देन टू. ठीक है. अब देखो वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, इसको हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं और नन को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए. ठीक. अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ये आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग में मिस्टेक्स आती हैं. रॉन्ग रिलेटिव क्लॉज लगा के दिया जाता है, आपको उसको करेक्ट करना होता है. जैसे आई नो अ ग्रेट डील रेस्टोरेंट, अ लिटिल रेस्टोरेंट डैश, दैट हु या वेयर, वेयर क्या आएगा? वेयर. सैम नोज अ मैन डैश ब्रदर वर्क्स फॉर द प्रेजेंट. मैन लिविंग बीइंग है तो क्या आ जाएगा? हु, पर्सन के लिए. स्टूडेंट्स, इसमें भी आँख मीच के आप हूँ भर सकते हैं. फूड is imported from other countries is expensive. तो food क्या आएगा इसमें? that. क्या आएगा? that. The bad weather is the reason why. reason है तो why. The cookies dash you baked on are really delicious. The cookies which you baked, जो तुमने बेक की. which को हम choice के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. कौन सी? जो वो वाली. ठीक. My grandmother remembers the time
टाइम के लिए क्या आएगा व्हेन. आई विजिटेड माई अंकल डैश, अंकल लिविंग बीइंग है तो क्या आएगा हु. ठीक, फिर इसमें देखेंगे हम कैन यू फाइंड द टीचर यू टॉक्ड इन द मॉर्निंग. टीचर के लिए क्या आएगा. अब ये कैन यू फाइंड द टीचर. अब आप देखो यहाँ पर सेंटेंस में कि यू तो आ रहा है हमारा सब्जेक्ट में, टीचर किस जगह पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे. तो क्या आएगा इसमें होम. क्या आएगा होम. अभी हमने आपको बताया था ना हु किसके लिए आएगा, सब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा होम, और पोजेसिव के लिए क्या आएगा हुज. ठीक. मोस्ट ऑफ द पीपल डैश शी मेट वर फ्रॉम सिडनी. मोस्ट ऑफ द पीपल, अब ये सब्जेक्ट है, whom शी मेट, यहाँ पर भी क्या आएगा whom. मोस्ट ऑफ द पीपल, पीपल ज़्यादा लोग हैं, whom she met from. My home is a place dash I can come home. My home is a place where I can, जहाँ पर मैं आकर. I want to borrow the book you bought last month. I want to borrow the book, कौन सी वाली बुक, that you, that वो वाली बुक. He had a feeling dash something terrible was going to happen. He had a feeling that something terrible was going to happen. Okay, फिर देखेंगे हम ये वाला. The movie we saw last week won 3 awards. The movie which we saw, जिसने जो हमने देखी थी. Do you know the reason there are no penguins in the why? Reason के लिए why. The people dash names, the people whose names are. अभी तो possessive में आ रहा है ना, जिनके नाम, whose name. He had a feeling dash something terrible was. Okay, now you understand. So you should know this nicely because in editing relative pronouns are very important. Okay, next we will continue tomorrow. For today only this much. And for homework, students, please you learn definitions of noun. You should know the definition, you should know the concept, and you practice the work. Many students are asking me, ma'am, what is the homework? So homework is this only. You write down your notes, you learn them, you revise them. Okay, thank you. Have a nice day.